Hello everyone, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the any of the competitive exam of home science and if you are watching our channel, so please subscribe our channel and click on the bell icon. So this channel will uploading the lots of videos, so you will get notified when we will update the new video. This channel is run by the professional expert. If you have any query regarding the study material and live classes, you can contact us our mail ID and our WhatsApp number that is mentioned in the description box, so you can check it from there. You can also follow us Facebook page, Instagram page and join the Telegram group for the more updates. And if you have any query or any doubt, so you can ask it in the comment section box, or you can also WhatsApp us or message us or our email ID. Okay guys, so today I'm going to talk about the very important topic that is known as nutrigenomics. It is one of the trendy topic. Most of the time the simple definitions and nutrigenomics kya hota hai, how it is related. It is basically part of your food science and nutrition FN ka part hota hai ye. So these kind of questions can be asked. So today we will deal with the what is the nutrigenomics. So as I can classified, or scientist has classified nutrigenomics in basically two parts. Sometimes it is also called as a nutrigenetics. The another name we can call it as a nutrigenetics. Okay, so nutrigenomics or nutrigenetics, so there is a two thing which is responsible, basically diet and gene. And in diet there is a role of nutrients. Whenever we are talking about the diet, or I can say that the food, so it is like something which is relatable to your nutrients. So diets and nutrients interaction with genes, that is the one of the basic and simple definition of the nutrigenomics. nutrigenomics क्या होता है? जो खाना हम खाते हैं, जो फूड हम लेते हैं और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारे जो विटामिन ए बी सी डी, या हमारे जो मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं. इनका जीन के साथ इंटरेक्शन कैसा होता है और उसके बाद हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, हमारी जीन कैसे रिएक्ट करती है, तो उस प्रिंसिपल पे जब हम काम करते हैं या उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, दैट इज़ योर नोन एज अ न्यूट्रिजेनॉमिक्स. तो अभी हमने दो टर्म की बात करी थी. अर्लियर वी हैव टॉक अबाउट द टू थिंग्स. वन इज योर नोन एज न्यूट्रिजेनेटिक्स और सेकेंड वन दैट इज योर नोन एज अ न्यूट्रिजेनॉमिक्स. सो बेसिकली इट इज़ लाइक जीन अफेक्ट्स हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू फूड, और वॉट एवर यू आर ईटिंग, हाउ योर जीन्स बिहेव ऑन दैट. सो बेसिकली इट इज़ समथिंग लाइक सम पीपल हैव सम एलर्जी इशूज़. कुछ लोगों को बहुत सारी चीज़ें खाने से एलर्जी होती है. ये जेनेटिक बीमारी तो नहीं होती है, बट जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन से दैट कि लैक्टोज इंटॉलरेंस वो होता है जिनकी बॉडी लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर जीन एवरी टाइम. ओके, तो ये इट इज़ लाइक समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर डाइजेशन प्रॉब्लम, इन बॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, आई कैन से दैट. बट लेकिन अगर हम न्यूट्रिजेनॉमिक्स की बात करते हैं तो इट इज़ स्पेसिफिकली टारगेट टू योर जीन की अगर हम जब बात करते हैं तो देयर इज़ अ रोल ऑफ योर डीएनए एंड आरएनए. तो जो भी फूड्स हम खाते हैं, कोई भी चाहे जो हमारा डेली रूटीन का खाना होता है, तो उस खाने को खाने के बाद हमारी जीन कैसे स्पेसिफिकली रिएक्ट करती है. फॉर एग्जांपल आई कैन से दैट कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके अल्कोहल प्रोडक्ट्स होते हैं या टोबैको होता है, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि नहीं खाना चाहिए, नहीं कंज्यूम करना चाहिए, बिकॉज आफ्टर अ टाइम ये हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं नुकसान कर देते हैं. बट वी कैन ऑल्सो सीन दैट द पीपल हु आर नॉट कंज्यूमिंग एनी अल्कोहलिक और एनी harmful substances, harmful food in their whole life, but they are also suffering from the one of the dangerous disease, I can say that the cancer and all. So it is how your genes are responding towards your food, either the food is healthy or not healthy. This is one of the questionable things. So basically कहने का टोटल मतलब ये है कि आप जो भी खाते हैं, आपका जो भी खाने का आइटम होता है, जो आपकी बॉडी में जाता है, डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, फिर आपकी जो जीन्स होती हैं इन टर्म्स ऑफ योर डीएनए आरएनए, वो उसके साथ रिएक्ट कैसे करते हैं और उसके बाद उसका रिस्पॉन्ड कैसा आता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
अगर हम डेफिनेशन के साथ जाते हैं कि न्यूट्रोजेनोमिक्स क्या होता है, ये मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया. Nutrigenomics is the area of nutrition that uses to molecular tool to search, access and understand the several responses obtained through a certain diet applied between the individual और population group. तो बेसिकली इसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं कि सपोज दैट कि मुझे एप्पल खिलाया जा रहा है, चूँकि बहुत कॉमन फूड है जस्ट फॉर एग्जांपल, तो मेरी जीन्स उसके साथ कैसे रिएक्ट कर रही है और आगे 10 लोगों का ग्रुप और बना दिया गया है तो उनके साथ कैसे रिएक्ट कर रही है. तो देयर इज़ अ समथिंग दैट कैन बी फाइंड आउट एट डिफरेंट लेवल कि सबके अपने अपने जीन्स होते हैं, सबके अपने अपने जेनेटिक फैक्टर होते हैं. तो इट कैन बी लाइक ऑन दैट. तो हम कह सकते हैं इट सीक्स टू इलेडुकेट हाउ टू कंपोनेंट्स ऑफ पर्टिकुलर डाइट. लाइक जब हम फूड की बात करते हैं, मैंने पहले ही बताया कि फूड मीन समथिंग दैट इज़ योर न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट मीन दैट इज़ योर बायो एक्टिव कंपाउंड्स में अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन विच में हैव इंक्रीज द पोटेंशियल और विच कैन बी सप्रेस्ड. दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. वन पॉसिबिलिटीज़ कैन बी लाइक दैट कि वॉट एवर यू आर ईटिंग इट मे बी रिड्यूस द चांसेस ऑफ द डिजीजेस, और आई कैन से दैट कि इट मे बी लाइक प्रिवेंट द डिजीजेस. बट देयर इज़ अ सेकेंड हैंड आई कैन से दैट लाइक कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो आपकी डिजीज़ेस को प्रमोट कर देते हैं, उनको प्रोवोक कर देते हैं कि जैसे आपने कुछ ऐसा खाया और वो आपकी जीन्स के साथ सूटेबल नहीं मैच हुआ, तो जो डिज़ीज़ आपको नहीं होनी थी या जो डिज़ीज़ आपको 80s में होनी थी या जो डिज़ीज़ आपको 90s में होनी थी वो आपको तुरंत हो गई. तो इट इज़ लाइक समथिंग, इट इज़ अ वास्ट एरिया ऑफ स्टडी एक्चुअली कि बहुत ज़्यादा इसमें स्टडी करने की ज़रूरत है. अभी बहुत ही कम रिसर्च इस सेक्टर में हुई है न्यूट्रिजेनोमिक्स में कि जीन्स और डाइट का इंटरेक्शन कराने के लिए, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द लाइक कॉस्टेबल, क्योंकि इसमें चार्ज बहुत ज़्यादा आता है. इसका एक ड्रॉबैक ये होता है. दूसरी चीज़ ये होती है कि प्राइवेसी ऑफ द डेटा, बिकॉज अगर आप किसी भी लाइक पर्टिकुलर मेडिकल इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं, आजकल बहुत सारी प्राइवेट लेबोरेटरीज भी हैं जो इसके ऊपर वर्क कर रही हैं, तो दे ऑब्टेन्ड योर होल डेटा, लाइक आप कौन से जीन्स के हैं, क्या हैं, कैसे हैं, ईच एंड एवरीथिंग विल बी लाइक कवर्ड ऑन दैट. सो इट इज़ टू मोस्ट चैलेंजिंग थिंग्स बिहाइंड द साइंटिस्ट और बिहाइंड द government ki like how they manage these security levels and how they like low cost and all that, so everybody can go through with that and all that. So it is something which is all about your genes and diet. इसके साथ साथ डाइट के साथ साथ न्यूट्रिजेनोमिक्स जो हमारी जीन्स होती है वो और कौन कौन से फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है. डाइट के साथ साथ एक इंटरेक्शन जो मैटर करता है वो हमारे सराउंडिंग, लाइक योर स्टेट ऑफ माइंड, योर सोशल कॉन्टैक्ट, लाइक योर मेडिकेशंस, लाइक योर आपका गट कैसा है, एक्सरसाइज, लाइक योर फाइनेंशियल ट्रबल्स, एंड ये सारे जो फैक्टर होते हैं या आपके एपिजेनेटिक फैक्टर होते हैं, इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जो कि बेसिकली कहीं ना कहीं जैसे बहुत लोग स्ट्रेस में होते हैं तो दे ईट टू मच, और बहुत लोग ऐसे होते हैं खाना पीना ही छोड़ देते हैं. तो इट इज़ समथिंग लाइक कि आपके जो भी डिजीजेस हैं, वायरसेस हैं या टॉक्सिक केमिकल्स हैं या टॉक्सिक ड्रग एब्यूज़ हैं, जैसे कुछ लोग जो एडिशनल लेते हैं ड्रग्स वगैरह, उनकी बात हो रही है यहाँ पे. और साथ ही साथ मतलब ये जो जितने भी आपकी सराउंडिंग्स इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं ये भी कहीं ना कहीं आपके जीन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, इंक्लूडिंग डाइट. तो ये सारे फैक्टर्स को रिलेट करते हुए इस एरिया पे स्टडी करी जाती है, दैट इज़ योर नोन एज अ न्यूट्रिजेनोमिक्स. बट इन द एग्जाम व्हेन इट इज़ आस्क्ड दैट कि न्यूट्रिजेनोमिक्स क्या होता है, तो न्यूट्रिजेनोमिक्स इज बेसिकली दैट इज़ योर फूड और आई कैन से दैट डाइट इंटरेक्शन बिटवीन द जीन्स. तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं और ऑप्शंस में आप ये भी रख सकते हैं न्यूट्रिएंट्स. सो फॉर द कन्फ्यूजन बेसिस दे मे बी लाइक गिव यू द लाइक न्यूट्रिजेनोमिक्स स्टडी, और न्यूट्रिजेनोमिक्स इज नोन एज द इंटरेक्शन ऑफ डाइट, फूड, न्यूट्रिएंट्स. तो ये सब एक ही कैटेगरी की चीज़ें हैं. ऑल ऑफ द अबव अगर फोर्थ ऑप्शन है तो डेफिनेटली ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि डाइट और फूड एक ही चीज़ होती है और फूड के अंदर ही कोरिलेट होता है आपका न्यूट्रिएंट. ठीक है, जीन जो है वो आपका एक अलग है. तो इन तीनों का इंटरेक्शन अगर हम एक कॉमन टर्म में कहें कि जब एक साथ होता है तो उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिजेनोमिक्स. इट इज़ वन ऑफ द trendy topic in the research area. Lots of researches has been already done and lots of has been continuing, and government is also thinking about it how to do in a like a possible way and in a like a very a low cost availability and security of the data and all these things. So it is one of the challenging issues behind the government and behind the agencies who are working towards these
topics and these research area. So you can just prepare it for the your exam level, like NT and JRF, or you are preparing for the any of the competitive exam of the home science. So this will going to help you too much. So just learn about the nutrigenomics, or if you have any further query regarding this one, you can ask me in the comment box, or you can write us our mail ID. Thank you so much guys, keep watching, कीप सपोर्टिंग अस, एंड प्लीज़ इफ़ यू आर वॉचिंग आर वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं, आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।